Hello friends, welcome to our YouTube channel Technotic. So friends, today's video is all about inductor and its working. So today we are going to cover some important points about inductors, that is what is inductor, active and passive components, types of inductor based on assembly, then types of inductor based on construction, then what is inductance, working of inductor, inductors in series and parallel, and then we will end with this video with the applications. So let's proceed further. So I am just giving an introduction of a brief introduction of a inductor, what actually inductor is. So inductor is basically a passive electronic component. Here a word passive is used. It means that when we categorize components, then we have two types of components, like active components and then passive components. So active components are those components which have their own energy, or we can say they generate energy. They do not depends on other for their operation, like battery, thermistors are the example of the active components. And when we talk about the passive components, those components which does not have their own energy or source, they actually depends on other for their operation. For examples, resistance, inductor and capacitors, they actually take energy from other source and then operate itself in the circuit. So inductor can be defined as a passive component that opposes a sudden change in current. So here a word oppose is used. It means that it does not allow a change in current. When change in current does not basically change in current को allow नहीं करता है, वो oppose करता है, भगाता है, हटाता है. So इंडक्टर को हम coils and chokes भी कहते हैं, और इंडक्टर का जो मेन काम है वो है to store energy in the form of magnetic field. When we talk about the SMD of the inductors, there are basically two types of inductors, SMD type and then throw-hole type. SMD type means that you have seen on the PCs, like on the surface, that and the process used is SMT, surface mount technology यूज होती है फ्रेंड्स, जो माउंट करने के लिए SMD जो हमारी होती है उसके ऊपर मार्किंग्स भी होती हैं उसकी, जितनी वैल्यू की हमारा जो इंडक्टर होता है. लाइक इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑल्सो टेल यू अबाउट दैट हाउ we can check the value of our resistance visually. In the same way we can also get the value of the inductor of SMD resistance, SMD inductors. So throw-hole type, the inductor which can be placed manually on the PCB. So means manually हम किसी भी, जैसे कि PCB है उसमें होल्स हैं और उसमें हम इंसर्ट कर देते हैं, वो हमारे थ्रो-होल टाइप में आते हैं फ्रेंड्स इंडक्टर्स. So when we talk about the types of inductor based on construction, so there are four types of inductors as names are given below: air core inductors, iron core inductors, ferrite core inductors and variable core inductors. When we talk about the air core inductors are those inductors which do not have any core inside it, core inside it. Or iron core inductor means that they have a iron core inside it on which the copper wire is wound. And here the lines denotes that friends, line denotes is a core, बेसिकली कोर है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कोर नहीं है एयर कोर इंडक्टर में, तो आपको दिख रहा होगा इसमें कोई कोर नहीं है, इसलिए इसको एयर कोर इंडक्टर कहा गया है. एंड फेराइट कोर इंडक्टर्स भी सिमिलर होता है आयरन कोर की तरह, बस मटेरियल डिफरेंट होता है हमारा जो कोर यूज करते हैं उसके अंदर फ्रेंड्स. So inductor is characterized by the inductance. Here a word inductance is used. Inductance, it is an important term for in terms of inductor. It is basically a property that causes the EMF to be generated by a change in the current flowing. So basically क्या है कि जब हमारा current flow change होता है, rate of change of current होता है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो EMF और एक force generate होता है. EMF के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स. If you not seen that video, please go there and so that you can understand more about the EMF. So एक फोर्स जनरेट होता है, और जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये एक फोर्स जनरेट होने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इंडक्टेंस कहते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट its unit is
हेनरी में हम इस इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एच. एंड व्हाई द नेम Henry is given here is because of the Joseph Henry was a physicist who gives the theory of inductance. That's why the value of inductance is in Henry. So a question arises that how we can find inductance of an inductor. So here are two formulas can be used to find the inductors. One is that a mathematical formula in which you have few parameters we should know, so that we can apply in the formula, and this, like coils number of turns कितनी है उसमें, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस क्या है, म्यू इज द परमेबिलिटी होती है फ्रेंड्स, एयर में अलग होती है और वैक्यूम में अलग होती है. देन एल लेंथ क्या है उसकी, ये सारे पैरामीटर्स हमको पता होंगे तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और हमें एल जो कि इंडक्टेंस होता है वो हमें पता चल जाएगा. देन सेकंड मेथड इज एलसीआर मेथड. एलसीआर मेथड एक मीटर होता है फ्रेंड्स. एलसीआर, एल मीन्स हमारा डिनोट करता है इंडक्टर, सी मीन्स कैपेसिटर एंड आर फॉर रेजिस्टेंस. हम ये तीनों वैल्यू इस मीटर से निकाल सकते हैं, एलसीआर मीटर से निकाल सकते हैं विद इन अ मिनट. सो हमें इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई करने की नीड नहीं होती, जस्ट दो प्रॉप्स होती हैं, हम उसको एज अ मेजरिंग टाइप में इंडक्टर्स के दोनों पोल पे रखेंगे और हमें वैल्यू पता चल जाएगी, उसकी इंडक्टेंस पता चल जाएगी फ्रेंड्स. So how inductor works? So few things we have to keep in our mind, that when currents flow through a conducting material, magnetic field will produce. It means that a conducting material, जैसे कि एक वायर है, उसके अंदर अगर अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स क्या, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चुंबकीय, जिसे हम कहते हैं ना चुंबकीय अट्रैक्शन टाइप का फोर्स एक प्रोड्यूस होगा. एंड सेकंड थिंग हमें याद करनी है, when current carrying conductor plays in the magnetic field, then EMF will induced. It means that when current carrying conductor, जैसे एक वायर है उसके अंदर करंट है और एक मैं उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में रख रहा हूँ, तो उसके अंदर एक फोर्स उत्पन्न होगी, फोर्स ओकर होगा. In the below diagram, as you can see that a core on which a coil wound with a cross sectional area and a number of turns and flow of current flow होगा इसके अंदर से फ्रेंड्स. देन जैसे कि हमने पढ़ा कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर देन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस. तो इसमें भी क्या होगा, जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल जो है हमारी, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी फ्रेंड्स. और एज वी नो दैट व्हेन करंट इज कांस्टेंट इन स्टेडी स्टेट देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट. मींस अगर करंट जीरो है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा उस टाइम पे. बट व्हेन करंट राइजेस विद द टाइम, जैसे कि हमारा टाइम बढ़ता है और करंट बढ़ता है, तो सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा फ्रेंड्स. सो बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो वायर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है आसपास, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें जो है आसपास में जो हमारे कॉइल्स हैं उसकी थ्रू जो दोनों की अब मैग्नेटिक फील्ड्स हैं दोनों कॉइल के बीच में, तो दोनों कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं. जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो फ्रेंड्स उसके अंदर एक क्या है, एक फोर्स, एक ईएमएफ जनरेट होता है. और जैसे कि फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे आप, एक जो कॉइल के अंदर एक हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इट मीन्स अभी हमारा जो कॉइल है वो किस कंडीशन में है फ्रेंड्स, इसके ऊपर करंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैली बन रही है हमारी. तो इट मीन्स क्या है, ये इसमें हमारा एक वो रूल लग रहा है जो मैंने आपको बताया था, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ विल प्रोड्यूस. तो इसमें क्या है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और फोर्स प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर क्या है, जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से क्या हमारा एक करंट भी इंड्यूस होता है. तो सिमिलरली इसके अंदर भी क्या है, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन जो उसका डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा किसके, जो हमारा कॉइल के अंदर करंट है. तो दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो नेट करंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो. तो सो इन दिस वे हाउ इट अपोज द करंट. सो प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ वी विल लर्न अबाउट द सीरीज इंडक्टर्स एंड पैरेलल इंडक्टर्स. सो सीरीज इंडक्टर्स, the sum of all the inductors in series will give you a total inductance, and total inductance will increases. And in parallel inductors, when inductors are connected in parallel, the total inductance is less than the smallest inductance. So formula क्या होगा फ्रेंड्स, बेसिकली
फॉर्मूलेज जो है हमारे रेजिस्टेंस की तरह है। जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरेलल में 1/R1 प्लस R2 1/R3, सिमिलरली इसमें 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/3 हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/LT मिल जाएगा हमें, जो कि हमारा पैरेलल इंडक्टर्स जब कनेक्ट होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो उससे हमें पैरेलल इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टेंस निकल जाएगी फ्रेंड्स। सो प्रोसीडिंग फर्दर वी विल know where the inductors are used, the applications of inductors. So inductors are basically used in the tuned circuits and the sensors, energy storage, जहाँ पे एनर्जी स्टोर करना है हमें, क्योंकि हमारा जो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की तरह स्टोर करता है हमारा जो इंडक्टर होता है। एंड देन इंडक्शन मोटर के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट उसके अंदर से फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है इंडक्शन मोटर में। वो मैं आगे आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ट्रांसफार्मर भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है हमारा, म्यूचुअल इंडक्शन पे। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है पूरा। इंडक्टिव फिल्टर्स, चॉक्स, फेराइट बीट्स, रिले में भी आपका बिल्कुल वही है कि जब करंट फ्लो होता है मैग्नेट में, तो एक मैग्नेट चुंबक का काम करता है जिसके वो स्विचिंग करता है ऑन ऑफ NC NO। ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा फ्रेंड्स। सो आज की वीडियोस के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आई होप you will learn at least something from this today's video.